सभी दोस्तों को नमस्कार। मैं जगदीश यादव, आपका स्वागत है मेरे चैनल गीतांजलि में। आज हम लोग डिस्कस करेंगे मैट्रिक्स क्या होती है, मैट्रिक्स की को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, उसका डिफिनेशन क्या है, उसका इंट्रोडक्शन जानेंगे और मैट्रिक्स को कैसे कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं इस चीज़ को जानेंगे। मैट्रिक्स की डायमेंशन क्या होती है, उसको जो डायमेंशन है उसका कंस्ट्रक्शन से क्या रिलेशन है, एंड ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को समझेंगे। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के तहत बेसिकली हम नंबर ऑफ एलिमेंट को समझेंगे कि एक मैट्रिक्स क्या, व्हाट इज मैट्रिक्स बेसिकली एंड व्हाट इज द रिलेशन with its order. Okay, so first thing is that define the matrix. So the matrix is basically an array. So matrix basically क्या है? So matrix is basically an array. Okay, and rectangular array. Its matrix is basically a rectangular array. Okay, अब ये रेक्टेंगुलर एरे तो है, बट ये एरे टू डायमेंशन बेस्ड एरे है। सो हम इसको बोल सकते हैं कि एरे ऑफ m एंड n, ओके, m एंड n और रियल और कॉम्प्लेक्स, m एंड n रियल और कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो मैट्रिक्स इज बेसिकली अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ m and n where this m represent the row and this n represent the column. okay, so चलते हैं, देखते हैं, इसको डिफाइन करके देखते हैं। so we can say a rectangular array of m and n, real or complex, arranged in m horizontal rows and n vertical columns. ओके, सो बेसिकली एक एरे है, मैट्रिक्स एक एरे है जहां पे m बेसिकली जो है रोज को और n कॉलम को रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, नंबर 2, मैट्रिक्स को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। नंबर 2, बाय capital letter cap, it represented by capital, generally capital A, B, C, capital A comma B comma C, used to represent, used to dot dot dot, used to represent, ठीक है, used to denote, okay, denote matrix. Done. So let the matrix A, and one thing more, that a symbol used
a symbol the big bracket or parenthesis used to define the matrix. Okay, so let A is a matrix. So the matrix whose element are Aij, whose elements are having the m row and n column. That means that A1, A11, A12 dot 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 A1n. So this is simply one dimension array known as row array. Same as A m1, A m2 and so on A m n. Okay, so order is m n. Okay, so this is basically the general representation of a matrix. That's why I said here that a container matrix is basically a container, rectangular container having m rows and nth column. Okay, so here I means row represent the rows and j represent the column. Same as m represent rows and n represent column. Okay, now one thing more, that in this above matrix A, this particular thing is represent the rows. So this is basically the row. These values are basically representing the row. Okay, so this data is basically a row and this particular data represent column. Okay, so in other words we can say matrix is basically a collection of two-dimensional collection of any data in the format of rows and column. Okay, so matrix is basically an rectangular array having m rows and n columns. Okay, now another thing is key, what is basically dimension or order of a matrix. Okay, so this particular value, that is a m into n. So order, so m into n, these particular things represent the order of a matrix. So these particular things represent that, so product of these particular things is represent the dimension of matrix A, of matrix A.
This thing is also called order of matrix. Order of matrix A. Matrix A. Okay, and the order of matrix A, these terms define the maximum number of elements. Inside the matrix, inside the given matrix. Okay, so as you know that capital letters always represent the matrix, and here this Aij represents this particular things, represent element, and these particular things represent the matrix. So we can say that matrix is nothing, it's basically a set of elements. So we can also say the matrix is basically a set of elements. Understood? सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि मैट्रिक्स क्या होती है। मैट्रिक्स एक समूह होता है एलिमेंट्स का जो रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज होते हैं। ओके, और रो एंड कॉलम का जो प्रोडक्ट है उसे हम ऑर्डर या डायमेंशन ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं, जो कि मैट्रिक्स के अंदर कितने एलिमेंट होते हैं इस चीज को डिफाइन करता है। ओके, और इस ऑर्डर को हम पढ़ते हैं m/n। ओके, एंड इट रीड एज दिस थिंग, रीड एज m/n। ओके, सो एक एग्जाम्पल के थ्रू हम समझते हैं। सो एक कोई मैट्रिक्स है, लेट एग्जाम्पल यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं। ओके, सो लेट मेरे पास में लेट मैट्रिक्स ए है और ये 2x2 की मैट्रिक्स है। सो लेट इसके एलिमेंट हैं 1, 2 एंड 3, 4। ओके, सो दिस इज द मैट्रिक्स of order 2x2. Okay, so why 2x2? Because it has two rows. So this is the row 1, this is the row 2. So number of rows are basically the 2. Okay, and this is the column 1 and this is the column 2. So the number of column is also 2. Okay, same as let we have another matrix. So this thing is particular basically the, so this thing is basically the order. Okay, so this thing is basically the order. Okay, next let the matrix B having the element 1, 0, 1, 2, 1, 3. Okay, so as you know, you have the R1, you have the R2. Okay, so number of row is basically 2, and you have C1, you have C2, you have C3. So number of column are basically the 3. Okay,
So this particular always represent for row and this always represent for the column. Okay, and m into n has basically the also represent the number of element. So नोट डाल के आप लोग इसे नोट डाउन कर सकते हैं. नोट दैट m the order the m by n always has mn elements. Okay, within the matrix. ओके, सो उम्मीद करता हूँ दोस्तों मैट्रिक्स क्या होती है ये आपको समझ में आया होगा कि मैट्रिक्स एक प्रकार का कंटेनर है जहाँ पे डेटा को रो और कॉलम की फॉर्म में अरेंज करते हैं. रो को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं जो कि हॉरिजॉन्टल एलिमेंट्स का कलेक्शन होता है रो की फॉर्मेट में, और n जो है बेसिकली कॉलम के फॉर्मेट में डेटा को जब अरेंज किया जाता है तो उसे हमने n से रिप्रेजेंट किया हुआ है. एंड जब ये 2 डायमेंशन रो और कॉलम दोनों कंबाइंड होते हैं तो वो एक मैट्रिक्स को फॉर्म करते हैं बेसिकली. यहाँ पे जो बेसिकली नंबर ऑफ रो एंड कॉलम है, सो द प्रोडक्ट ऑफ रो एंड कॉलम वो एक ऑर्डर को डिफाइन करता है या किसी भी मैट्रिक्स के डायमेंशन को डिफाइन करता है. जैसा कि ऊपर दोनों एग्जाम्पल में दिखाया गया है. एग्जाम्पल जो मैट्रिक्स ए है उसमें 2 रो और 2 कॉलम है. मैट्रिक्स बी में बेसिकली 2 रो और 3 कॉलम है. सो ये रो और कॉलम का जो प्रोडक्ट है वो बेसिकली नंबर ऑफ एलिमेंट विद इन द मैट्रिक्स को शो करता है. जैसा कि 2 into 2 दैट इज 4 और नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैट्रिक्स ए आर बेसिकली 1 2 3 4. देयर आर 4 एलिमेंट्स. व्हाइल इन मैट्रिक्स बी आप देखेंगे यहाँ पे कि इसका ऑर्डर 2 into 3 है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे 6 एलिमेंट होने चाहिए. तो 6 एलिमेंट कुछ इस प्रकार से हैं जो कि 1 0 1 2 1 3 हैं. सो उम्मीद करता हूँ कि आपको मैट्रिक्स एग्जाम्पल के साथ समझने में आपको आसानी हुई होगी और बाय डेफिनेशन भी आपने समझा कि मैट्रिक्स को कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे रिप्रेजेंट करते हैं. मैट्रिक्स को हमेशा कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं जबकि उसके एलिमेंट को हमेशा स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं. वहाँ पर बेसिकली डिनोमिनेशन के लिए मैंने 2 सिंबल्स का उपयोग किया है. सो बेसिकली बिग ब्रैकेट्स का इस्तेमाल किसी भी वैल्यू की मैट्रिक्स या को रिप्रेजेंट करता है या एरे को रिप्रेजेंट करता है, या पैरेंथेसिस के अंदर इन वैल्यूज को लिखेंगे तो वो भी मैट्रिक्स को ही रिप्रेजेंट करता है. सो बहुत बहुत धन्यवाद मेरी वीडियो देखने के लिए और उम्मीद करता हूँ आपको मैट्रिक्स अच्छे से समझ में आ गई होगी. फिर भी कोई डाउट या क्वेरी रह गई है तो आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देखें और कमेंट करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें. और फिर भी कोई डाउट या क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं ताकि मैं आपकी समस्या का समाधान कर सकूं. बहुत बहुत धन्यवाद.